And every year since 2001, June 1st is observed as the World Milk Day by Food and Agriculture Organization of the United Nations to acknowledge the importance of milk as a global food and to celebrate the dairy sector. Well, in India, the birthday of Dr. Verghese Kurian on November 26th is observed as the National Milk Day, who is popularly known as the father of the White Revolution in India. Here's more. November 26th is celebrated as the National Milk Day to commemorate the birth anniversary of Dr. Kurian, who is known as the father of White Revolution in India. According to official data, India ranks first in global milk production. And milk production is growing at the compound annual growth rate of about 6% over the past 9 years, from 146.31 million tons during 2014-15 to 230.58 million tons during 2022-23. Dr. Kurian was born on November 26, 1921 in Calicut, which is now Kozhikode in the southern state of Kerala. Looking at the struggle of milk farmers in Anand, he along with others started the milk cooperative movement in the region, which was registered under the name of Kaira District Cooperative Milk Producers Union Limited, which was later renamed to now popular Amul. He worked towards bringing a white revolution in India and executed the much-needed program of Operation Flood. Under his leadership, many important institutions were established: the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited and the National Dairy Development Board. Dr. Kurian was the first chairman of NDDB. He worked on the Anand pattern cooperatives in milk sheds across the country, from where liquid milk produced and procured by milk cooperatives would be transported to cities. Dairy is the largest agricultural commodity that contributes to 5% of the national economy. And when we talk about dairy production in India, milk production in India, India contributes to about 25% of the global milk production. That makes India the biggest milk producer in the world. Further, to encourage farmers to take up productivity enhancement of indigenous breeds of milk animals in a scientific manner and to motivate cooperative and milk producer companies, the Government of India is conferring the prestigious National Gopal Ratna Awards on the occasion of National Milk Day. Meghna Dev's report, DD India. इस साल 26 नवंबर को डॉक्टर कुरियन के 103वें जन्म दिवस पर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 2023-24 के डेयरी स्टैटिस्टिक्स को प्रेजेंट किया। वैसे तो पिछले साल के मुकाबले हमारी दूध की प्रोडक्शन 203 बिलियन लीटर से बढ़कर 239 बिलियन लीटर हो गई है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी 459 ग्राम से 471 ग्राम हो गई है। पर पिछले 2 सालों से गर्मियों में भी दूध मिलता रहा, पर फिर भी दूध प्रोडक्शन की ग्रोथ 5.77% से घटकर 3.78% रह गई है। माना कि यह भी अभी ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, पर अगर यह ग्रोथ ग्लोबल प्रोडक्शन के इक्विलिब्रियम में 3.5% के आसपास ही रुक गई तो 2047 में जिस 100 बिलियन लीटर के मिल्क सरप्लस की हम बात करते हैं वो नहीं मिलेगा। दूसरे, हमें अपनी प्रोडक्शन को वैलिडेट भी करना चाहिए, क्योंकि यह फिगर्स नेशनल पर कैपिटा मंथली एक्सपेंडिचर डेटा से बिल्कुल मेल नहीं खाती, बल्कि भारत के एक विख्यात इकोनॉमिस्ट ने इस विसंगति पर एक लेख भी लिखा है। दूसरी अचरज की बात जो इस स्टैटिस्टिक्स में सामने आई कि डिपार्टमेंट ने बोला कि भैंस के दूध में 16% तक की गिरावट आई है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य था। वैसे अभी की स्थिति में जब फ्लश में भी भैंस का दूध ज़्यादा नहीं बढ़ा और भैंस के मीट का एक्सपोर्ट भी डेयरी के मुकाबले 13-14 गुना ज़्यादा हो रहा है, तो ये खबर कुछ सच सी लगती है। पर 16% दूध कम होना मजाक नहीं है। तो हमने पिछले साल का भैंस के दूध का शेयर देखा, जो कि लगभग 44.81% रहा।
बाकी का शेयर बकरी, क्रॉस ब्रीड गाय और देसी गायों का रहा। लेकिन 2023-24 के डेटा में भैंस का शेयर फिर 44% ही आता है। सरकारी आंकड़ों में जो पशुओं के आधार पर डेटा दिया है उसका टोटल बकरी के दूध को मिलाकर 103% से ऊपर चला जाता है। हमने उसको ठीक करके भी देखा तो पाया कि भैंस के दूध का शेयर अभी भी 44% है। खैर, अभी पूरा डेटा हमारे पास नहीं आया है तो हम कमेंट नहीं कर सकते। बेहतर यही है कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से इस स्टेटमेंट को चेक कर ले और असली पता तो 21st लाइवस्टॉक सेंसस के बाद ही चलेगा। बाकी गायों का दूध 53% है, जिसमें 1/3 देसी गायों का है। एक और डेटा शेयर किया गया कि देसी गायों का दूध लगभग 45% बढ़ गया और क्रॉस ब्रीड का 8%। अगर ऐसा होता तो गायों का शेयर लगभग 60% और भैंसों का 37% ही रह जाता, जो कि दिए हुए आंकड़ों से मेल नहीं खाता। अब बारी है दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत के टॉप 5 राज्यों की। पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र ही टॉप 5 पोजीशन पर रहे। इससे पहले कि मैं 23-24 के डेटा पर आऊं, मैंने सोचा कि क्यों नहीं इन 5 राज्यों में ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिस्से को देखूं। तो 22-23 में कोऑपरेटिव के दूध संकलन का शेयर लगभग 11% रहा, यानी कि रोज के लगभग 32 करोड़ लीटर के एवज में मात्र 4 करोड़ लीटर ही दूध कोऑपरेटिव द्वारा इन 5 स्टेट्स में संकलित हुआ। गुजरात में यह कलेक्शन 65% से ऊपर रहा। हम लगभग इतना ही संकलन प्राइवेट सेक्टर का भी मान लें तो ऑर्गेनाइज क्षेत्र की भागीदारी इन 5 स्टेट्स में 22% तक मानी जा सकती है। 2023-24 में इन 5 राज्यों ने पूरे भारत का लगभग 54% दूध इकट्ठा किया, जो कि बहुत गर्व की बात है। इनमें से कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में डायरेक्ट मिल्क सब्सिडी है। मध्य प्रदेश सरकार एनडीडीबी के साथ डेयरी डेवलपमेंट के बहुत बड़े प्रोग्राम पर काम कर रही है। यूपी गवर्नमेंट भी स्टेट कोऑपरेटिव पराग को दोबारा से शीर्ष पर ले जाने को और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को डेयरी सेक्टर में लाने को भरसक काम कर रही है। गुजरात से अमूल बहुत तीव्र गति से भारत के अलग अलग स्टेट में दूध कलेक्ट कर वहां के डेयरी डेवलपमेंट में अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स के सबसे अद्भुत आंकड़ों पर। हमने पूर्वोत्तर राज्यों को हमेशा दूध के उत्पादन में इग्नोर किया, पर पिछले साल टॉप के 4 स्टेट्स वहां से ही आए हैं: वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं आसाम। यह तथ्य हमारे दूध में क्रांति से होने वाले किसानों के फायदे और ईस्टर्न स्टेट्स में कंज्यूमर के दूध के प्रति लगाव को भी दर्शाता है। Today I stand in front of you with gratitude to remember my father who started the milk revolution. My father believed in an inclusive economy, one that did not favor any community or gender, where all men and women could aspire to be equal, and one which would give them all a fair chance to build an India that had great opportunity for more broadly shared prosperity, especially for those facing the. He believed that India's place under the sun would come under the partnership between wisdom of its people and the skill of its professionals. He built over 16 institutions in his lifetime to strengthen the hand of the farmer and that of cooperatives too. May the farmers of the cooperatives grow from strength to strength. That would be his wish today. Thank you.